Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and safe at home. Take utmost care of yourself in these days. Drink ample amount of water so that you will be keeping yourself hydrated. Wash your hands properly with the soap solutions. You have to wash your hands for 20 seconds so that all the germs will get rid away from your hands. You can increase the intake of vitamin C in your diet. You can take the help of the sources of vitamin C that is available in plenty in vegetables as well as in fruits. You can use clonji, that is black seeds, as well as honey, so that it will be helping you to increase your immunity system. So by using all these steps you can keep yourself healthy and your immune systems will be going to a very good, so that you will keep away all these things away from yourself. Okay, so all this is about your safety measures. Now come to the topic. We have already started with the chapter biotechnology, and we have completed the maximum part of this chapter. This is our, I think, 7th session we are dealing with this chapter, and in this chapter we have started with applications of biotechnology. Now in this chapter biotechnology, I gave you the introductory part, the RDNA technology. Then in application of biotechnology we have seen the gene therapy. In that, somatic and germline gene therapy we have seen. Then we have seen that uses of transgenic plant, how to create transgenic plant by using biotechnology. Then we have seen the GM crop, that is the genetically modified crops. We have seen many examples also of this particular GM crops. Then we have seen the pest resistance as well as herbicide resistance crop, and how to create that GM crop, or how to create the herbicide or fungicide resistance crop. We have seen this chapter. Now today also we will be continuing with the application also. Now here we will be dealing with some extraordinary work that is going on in the field of biotechnology. Now after the harvesting of the crop, once the crop get harvested, so before it comes in market, or we can say in the transportation, what are the different problems the people are facing, so how to manage that post harvest things, whatever is happening on the plants. So in the field of horticulture, how they are dealing with the post harvest techniques, or we can say the post harvest management, we have to see in this session. It is also a part of application of biotechnology. It means here we will see how we will utilize the biotechnology to increase the shelf life of the plant. shelf life का मतलब हम तक पहुंचने तक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, वो बिल्कुल फ्रेश हमारे हाथों में आए, वो जो टेक्निक्स होगी वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहलाती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन अ मार्केट वी विल बी ऑब्जर्विंग द वेजिटेबल्स दैट गेट रॉट, वो ख़राब हो जाते हैं. अक्सर हम लोगों को ये चीज़ जो है वो नज़र आती है कि अक्सर जो गाजर है, और वी कैन से मेनी एग्जांपल्स लाइक टोमेटोज़ वी कैन से, तो आपको ऐसी कंडीशन में टोमेटोज़ दिखते हैं जो उसमें कीड़ा लग जाता है, या उसकी जो है वो कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, फ्रेश नहीं रह पाता वो. तो ये इसलिए होता है कि उसके अंदर जो है वो कुछ केमिकल्स ऐसे सेक्रीट होने लग जाते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, सो दैट इट स्टार्ट्स राइपनिंग. सो हियर वी कैन से कि यहाँ पे जो उसका जो प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि टमाटर हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं मार्केट में ही पड़े पड़े, या हम तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है. तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस that is due to the endangered enzyme activity, we can say. So genetic engineer will help here to make it possible, so that to slow down the activities, whatever enzymatic activity यहाँ पर जो होती है उसको रोकने का काम जो है वो genetic engineering के थ्रू किया जाता है. So in the tomatoes the enzyme polyglactorinase breaks down the cell wall कंस्टिट्यूएंट. हमको पता है कि सेल वॉल जो है वो पैक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है. तो ये पैक्टिन इट लीड्स द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग राइपनिंग. जैसे ही फ्रूट पक के तैयार हो जाता है, पैक्टिन की मौजूदगी की वजह से वहाँ पे राइपनिंग का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाता है. दस द फ्रूट्स आर ईजिली
ब्रूसीड्स यानी कि उसके अंदर जो है वो डैमेज उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि शिपमेंट के दौरान, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वहाँ पे जो है वो उसकी वो ख़राब होने लग जाते हैं. सो बाय इनहिबिटिंग द पॉलीग्लैक्टोनेस बाय एंटीसेंस जीन, एक जीन्स उसके अंदर अगर क्रिएट किया जाए, टोमेटोज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंटीसेंस जीन्स अगर उसके अंदर क्रिएट किए जाएँ, जिसको हम लोग बोलेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज़, तो ऐसे टोमेटोज़ जो है वो फ्लावर्स आर टोमेटो उसका नाम दिया गया. तो दीज फ्लावर्स आर टोमेटो कैन रिमेन्स ऑन the vine until mature and be transported in the फॉर्म इन द सॉलिड स्टेट. तो अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज जैसे कि फ्लावर्स टोमेटो अगर हम लोग क्रिएट कर देते हैं, या उसके अंदर ये जीन एंटीसेंस जीन्स हम लोग उसके अंदर क्रिएट कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और हम तक पहुंचने तक भी वो जिस कंडीशन से उसको फार्म से निकाला गया उस कंडीशन में ही वो हम तक फ्रेश हालत में वो हमको सर्व किया जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई कैन से, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फ्रेशनेस को मेंटेन कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स कि वो पोस्ट हार्वेस्ट में ऐसा क्या हो जाता है, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ख़राब होने लगते हैं. तो सम जेनेटिक फैक्टर्स आर देयर बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स एंड वैराइटीज़, यानी कि इस वजह से वो प्रोडक्शन की जाती है. सबसे पहले तो है हाई कंटेंट ऑफ कैरेटीन एंड विटामिन ए, जैसे कि टोमेटोज़ है, ओनियन है, कैरेट्स है. इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर कैरेटीन का कंटेंट ऑटोमेटिकली इतना हाई हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है. देन सेकंड वन इज़ लॉन्ग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ, यानी कि टोमेटोज़ और ओनियन को बहुत ज़्यादा अगर गोडाउन में रखा जाए और बहुत ज़्यादा उसको सेव करके रखा जाए तो वहाँ पर उसके अंदर जो है वो राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है. देन हाई कंटेंट ऑफ शुगर्स, अगर फ्रूट्स की हम लोग बात किए जाएंगे, इसे फ्रूट्स है मेलन्स हैं, तो ये मेलन्स में अगर बाई बर्थ उनके अंदर अगर शुगर का कंटेंट ज़्यादा है तो कुछ वक्त के बाद उसके अंदर जो है वो राइपनिंग स्टार्ट हो जाएगी. द नेक्स्ट वन इज़ द हाई कंटेंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड. अगर हम लोग पाइनएप्पल की बात करेंगे तो पाइनएप्पल के अंदर अगर बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो बहुत जल्द वो ख़राब होने लग जाएगा. सो इन द फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी विल परहैप्स अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस टू फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड और पैथोजेंस एसोसिएटेड टू क्वालिटी डीके, यानी कि कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे फ्यूचर में जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब फ्रूट्स बन रहे हैं या प्रोडक्शन जब उसका हो रहा है तो ये चीज़ें उसके अंदर बहुत कंट्रोल में रहें, ताकि उसको जो है वो आगे चल के या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कोई तकलीफ ना होने पाए. Now we will see how we are using plants in the field of biotechnology. Other uses we have seen in the form of GMOs and transgenic plant, but how plants are serving us as a factories, we will see here now. So to produce novel biochemicals and vaccines, जिसको के फार्मास्यूटिकल्स भी कहा जाता है, बायोफार्मास्यूटिकल्स. Now these biopharmaceutical or we can say plants are potential factories or bioreactors for हाई वैल्यूएबल बायोकेमिकल्स, जैसे कि स्टार्च, शुगर, लिपिड, प्रोटीन्स एंड प्रोडक्ट्स लाइक फाइन केमिकल्स, जैसे कि परफ्यूम्स है, एडिसिव कंपाउंड्स है, एज वेल एज इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स है, और द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड इवन रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप्स टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स. तो ये सारी चीज़ें जो है हमको प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं. प्लांट्स के थ्रू हम लोगों को ये सारा डेटा जो है वो अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग आगे बायोफार्मास्यूटिकल एजेंट्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Now before we proceed further, first it is very important to know what is biopharmaceuticals. Biopharmaceuticals also referred to as biological products or biologics, we can say, that contain an active substances derived from or extracted from a biological systems. It means either plants or animals, that is living organism. Or we can say biopharmaceuticals are proteins, hormones, antibodies, vaccines or enzymes isolated from transgenic plants. Now let's see some of the proteins that are being produced by transgenic crop plants. The very first one is the human growth hormone, with a gene inserted into the chloroplast DNA of the tobacco plant. By applying method of biotechnology, they have created the human growth hormone with the help of tobacco plant. On the tobacco plant they have applied all the techniques of biotechnology, and then they have extracted the human growth hormone from that particular tobacco plant. Humanized antibodies against such infectious agents like HIV, respiratory
syncytial virus, that is RSV, herpes simplex virus, that is HSV, that cause of the cold sores. So these are the biopharmaceutical products that will be developed by using the biotechnology. Next one is the protein antigens that is to be used in vaccines. For example, patient specific anti-lymphoma. You know that lymphoma is a blood cancer. So for this they have created the vaccine. Now the B cell lymphoma are clones of malignant B cell expressing on their surface a unique antibody molecule. तो इसका इस्तेमाल करके they have created the vaccine that will be using as a patient specific lymphoma vaccines. So by using this vaccine we can treat the patients that are suffering from B cells lymphoma. So this is a very good, we can say, vaccines for the cancer patients. Apart from this, many novel products have been commercially exploited for their products. Among that, the very good example is super glue. It is a product that is produced by tobacco plants with genes encoding for powerful adhesive protein. From the tobacco plant they have extracted the gene that will be coding for the quality of the adhesion, sticky quality को, sticky जो proteins उसके अंदर होते हैं, they have used that protein that enables marine mussels to stick to rock. It will be especially valuable as a biochemical glue for body repairs during surgeries. So in the field of medicine we can say this super glue they are using, so that by using this they are giving the good repairs for the purpose of surgery. So tobacco plant का इस्तेमाल करके they have created super glue that is a very helpful measures we can say in the field of medicine. Next is the transgenic plant containing oil encoding gene from marine algae. It produces oil that has a nutritional value that will be similar to cod liver oil. It means जितनी essential property cod liver oil में होती है, इस marine algae के अंदर जो gene होता है that is coding for the encoding gene from marine algae oil के लिए जो encode करता है gene, उस gene को extract करके they have created such a oil we can say that is equivalent to the cod liver oil. Now after observing these examples you might have understood that how plants are using as a factory in the field of biotechnology, because by using plant sources only they are creating such a wonderful things that will be useful for the betterment of mankind. You might have heard that people are frequently suffering from malaria. So this remedy is also available in the field of biotechnology. By using plant source they have created the anti-malarial drug. Plant antimycin का इस्तेमाल करके they have created the anti-malarial drug, so that patient will get rid away very soon with the help of this anti-malarial drug. So there is a plant source, the name of the plant is artemisinin. By using this plant artemisinin, that is also called as artemisia or sweet wormwood, so by using this plant they applied all the techniques of rDNA technology. The gene that is responsible for anti-malarial ability, उस gene को extract किया जाता है, एंड आफ्टर अप्लाइंग द rDNA टेक्नोलॉजी इस जीन का इस्तेमाल करके एंटी मलेरियल ड्रग तैयार की जाती है. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ड्रग इट इज़ वेरी ईज वी कैन से फॉर द मलेरियल पेशेंट. लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो होता था उसकी बजाय सिंपली अगर हम लोग ये एंटी मलेरियल ड्रग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत हद तक जो है वो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा. सो वी कैन से इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन द फील्ड ऑफ स्पेसिफिकली बायोफार्मास्यूटिकल for the betterment of mankind. Now in biopharmaceutical there is one more example of
a plant that is called as opium poppy. Let me tell you something special about this plant, that this plant is also called as natural yeast. जो बेकर्स ईस्ट हम लोग यूज़ करते हैं इन अवर किचन, तो वो ईस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्लांट के एक्सट्रैक्शन से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, और वी कैन से इट इज़ अ नेचुरल ईस्ट. तो इस प्लांट ओपियम पॉपी का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इफ़ेक्टिवली किया जाता है टू क्रिएट द पेन किलर्स. येस एग्जैक्टली, पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस इज़ द इन्फ्लोरेसेंस एंड द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये पॉपी का बल्जिंग पार्ट जो आप देख रहे हो, वो उसका थैलामस जो है वो इतना बल्जिंग पोजीशन अक्वायर कर लेता है, और इसके अंदर जो उसका सेक्रीशन होता है, इस सेक्रीशन का इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी में इसके एक्सट्रैक्ट यूज़ करके पेन किलर्स, और वी कैन से लॉन्ग टर्म पेन किलर्स जो पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मोर पावरफुल पेन किलर्स हम लोग जो है वो बना सकते हैं. सो द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ओपियम पॉपी प्लांट, नॉर्मल पॉपी प्लांट नहीं बल्कि पॉपी प्लांट का इस्तेमाल करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ओपियम पॉपी के अंदर इतनी इन्हांस क्वालिटीज़ क्रिएट की जाती है, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज़ टू रिलीव द पेन, तो वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दिस ओपियम पॉपी प्लांट, और जेनेटिकली इंजीनियरिंग तरीके से पावरफुल पेन किलर्स यहाँ पे, जिसको ओपिएट्स कहा जाता है, तो ये ओपिएट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं. सो बाय यूटिलाइजिंग द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन से, सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ओपियम पॉपी प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं टू क्रिएट द पावरफुल पेन किलर. दे आर फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर, जहाँ पे जो ओपियम के प्लांट के जो बल्जिंग पार्ट होता है वहाँ से उसका रॉ ओपियम दे आर कलेक्टिंग, एंड देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ओपियम टिंचर दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइंग इट, एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग द रॉ ओपियम जेनेटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो है वो एक ड्रग तैयार किया जाता है. बहुत सारे पेन किलर्स जैसे कि मॉर्फाइन है, कोडाइन एंड देन नार्कोटाइन, ये सारे एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके बाद में जो है वो पेन किलर्स तैयार किए जाते हैं. बट ये ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं है बिकॉज़ इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. जो भी पेन किलर इस ओपियम पॉपी से बनता है उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए इंडिया में इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता. बट आउटसाइड द इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज़ इट इज़ वेरी पॉपुलर पेन किलर, वी कैन से वेरी पावरफुल पेन किलर. Now the last one is the transgenic plants producing edible vaccines. Genetically altered plants can provide protection to infectious diseases. Plant products acting as vaccines would be inexpensive to produce and thus can easily be made available in developing countries. By using edible vaccine, we may treat the डिजीज़ और वी कैन से द इन्फेक्शियस डिजीज़. इससे पहले भी हम लोग जो है वो एडिबल वैक्सीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं. दैट इज़ बाय यूटिलाइजिंग द techniques of biotechnology we can create the edible vaccines by using transgenic plants. So ये जो edible vaccines होंगे, say for example potatoes, tomatoes, banana, soya bean, alfalfa and many cereals. So they are the most common food proposed for edible vaccine delivery. It means that simply when people will eat such kind of food material or the fruits or the vegetables, so they may get protection from such infectious diseases. So these are also called as edible vaccines. So biotechnology का इस्तेमाल करके we can utilize such kind of good things from plant. So it is also utilized as a factory. It means that from plant we are getting good sources और उसके अंदर जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर जो असेंशियल बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लोग इस्तेमाल करके वहाँ पे एडिबल वैक्सीन्स बना सकते हैं. सो से फॉर एग्जांपल इन अ प्लांट फ्रॉम द लीफ एक्सट्रैक्ट वी मे क्रिएट द ट्रांसजेनिक लीफ डस्क एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग दैट plant part by the biotechnology methods we may create the edible vaccine. It means that simply when person will eat that carrot, तो वो एक सिंपल कैरेट खाने से उसके अंदर जो है वो बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी और that carrot will work as a edible vaccines to treat with some infectious diseases. We may take example of one more fruit, that is banana. So by using recombinant DNA technology or rDNA technology, we can
create the transgenic plant, that is transgenic, we can say banana, with edible vaccines. So genes from human pathogen that will be get inserted into the vector, and उसके बाद जो है वो वैक्टर का जो है वो ट्रांसफ़र करेगा उस प्लांट के अंदर, वो स्पेसिफिक जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल करता है इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने में। तो इसके बाद जो है वो जो बनाना यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो सिंपली बाय ईटिंग दैट बनाना दैट विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजन। इट मीन्स दैट सिंपली वो बनाना अगर हम लोग ईट कर लेंगे तो हमारे अंदर जो है जो भी पैथोजन्स रहेंगे उसको फाइट करने की हमारे अंदर एबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। Same way we can take the example of soybean also, that is vaccine we can create by using the seeds of soybean. So by using complete rDNA technology हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड ऐसे सोयाबीन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं दैट विल बी वर्किंग एज एन एडिबल वैक्सीन। Now this was about the plant. Now let's see how animals we can utilize in the field of biotechnology. We can create transgenic animals too. Yes, it is correct. It is true that we can create the transgenic animals by using biotechnology. Many transgenic animals such as mice, rats, rabbits, sheep, cow, fowls, fish, they have been produced through rDNA technology. The term transgenic animal refers to an animal in which there has been a deliberate modification of the genome, the material responsible for inherited characteristics. In contrast to spontaneous mutation, foreign DNA is introduced into the animal using a recombinant DNA technology and then must be transmitted through the germ line so that every cell, including germ cell of the animal, contain the same modified genetic material. In last lecture we have seen about the gene therapy. Over there we have seen the two types, germline gene therapy and somatic gene therapy. So here we can use the germline gene therapy, so there we can utilize the सोमैटिक सेल ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग जो है वो फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देन उसके अंदर जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमको चाहिए, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को मिल्क की क्वांटिटी बढ़ानी है एनिमल के अंदर, तो से फॉर एग्जांपल एक काव है और उसकी हमको जो है वो मिल्क की क्वालिटी हमको बढ़ानी है, तो उस कंडीशन में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि एक काव ऐसी है जिसकी जो है वो मिल्क की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है एंड द सेकेंड वन इज़ हैविंग वेरी गुड इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मिल्क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक काव के अंदर से वो जीन हम लोग निकाल सकते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट कर सकते हैं। वट एवर जीन्स ऑफ आवर choice we may manipulate that gene and we can prepare that in the laboratory। so इस तरीके से जो है वो ट्रांसजीन हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं into the egg of the animal। so जैसे ही वो एग में हम लोग इम्प्लांट करेंगे तो वो एग जो है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा एंड उसके बाद वहाँ पे जो है वो इट मीन्स इट विल बी एक्टिंग एज अ सरेगेसी टेक्निक। आप लोग जो है वो 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो जो ट्रांसजीन एनिमल अभी यहाँ पे बनेगा उसके अंदर मिल्क की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी जितना कि प्रोडक्शन हम लोग मिल्क का चाहते हैं। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग डीएनए मैनिपुलेट करके आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रांसजीनिक एनिमल्स भी क्रिएट कर सकते हैं सक्सेसफुली फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर एग्रीकल्चरल फील्ड। Apart from this, for many more other purposes, we can utilize animals in the field of biotechnology. We can create transgenic animals for other purpose also. A wide list is there, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो देखेंगे कि कैसे हम लोग एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो representative but non-inclusive list of purpose for which transgenic animals have been used indicate the wide-ranging application of this biotechnology. So we will see this one by one. The very first one is in the field of medicine. In medical research, transgenic animals are used to identify the functions of specific factors in complex homeostatic system through over or under expression of modified gene, that is the inserted transgene. So in the field of medicine we can say हम लोग बहुत आसानी से एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आपको तो ये बात पता ही होगी कि वट एवर मेडिसिन जो भी रिलीज़ होती है पहले उसको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट करना ज़रूरी होता है। इन टॉक्सिकोलॉजी
एज रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल्स, जिसको बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, जो मैंने बताया आपको, टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी वहाँ पे एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन इन ममेलियन डेवलपमेंट जेनेटिक, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ पे जीन एक्सप्रेशंस को चेक करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ द इवाल्युएशन ऑफ अ स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस एट द लेवल ऑफ द होल एनिमल। वहाँ पे एनिमल की एक्सप्रेशंस जो भी होंगी उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे हम लोगों को जो है वो वी कैन यूज़ द एनिमल्स in the pharmaceutical industries, whatever production of pharmaceutical targeted production of pharmaceutical proteins, drug production and product efficiency की टेस्टिंग करने के लिए भी हम लोग जो है वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो वी कैन से टेस्टिंग के टाइम पे कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, कुछ किसी के ऊपर सक्सेसफुल हो जाता है, तो इस तरीके से उनकी रेस जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करके और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ पे न्यू ट्रांसजेनिक स्पीशीज़ उसकी क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट उनकी रेस और उनकी जो जेनेटिक उनकी मेकअप है वो बना रहे, वो मेंटेन रहे और उसकी जो रेस है वो आगे चलती रहे ना। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं एनिमल्स के जिस पे हम लोग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी एज प्रोड्यूसर्स of specific protein we may utilize animals. Then we may create genetically engineered hormone to increase milk yield, milk production, genetic engineering of livestock, and in aquaculture affecting modification of animal physiology or anatomy, cloning procedures to reproduce specific bloodlines, etc. You might have heard in your lower classes where you have studied about animal husbandry. आपने पढ़ा होगा बहुत सारी एनिमल की वैरायटीज़ के बारे में, डांगी, दीवानी, खिलारी, ये बहुत सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। आपने पढ़ा होगा एनिमल हस्बेंड्री में, आपने ये नाम सुने होंगे, डांगी, खिलारी, दीवानी, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स और वी कैन से स्पेशली काउस की वैरायटीज़ के नाम है जिनको क्लोनिंग के थ्रू और वी कैन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये कहलाते हैं। क्लोनिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्लोन करके ये एनिमल्स को क्रिएट किया जाता है। आपने सुना होगा डॉली, दैट इज़ अ शीप, जो एक क्लोन था, सबसे पहला जो क्लोन बना जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी में, दैट इज़ द डॉली। तो वो भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो एनिमल की लाइफ स्टॉक उनका बढ़ाने के लिए और जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर हमको चाहिए, जो लोकल वैरायटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इम्यून सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम लोग लेके जो दूसरी हाइब्रिड वैरायटी वहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट डेवलपिंग एनिमल्स स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर यूज़ इन xenografting. Xenografting is a technique where we are transferring the cell or tissues from one animal to another animal. तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से जो xenografting के लिए जो एनिमल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग these many examples, I hope you might have understood that how we can create the transgenic animals or how we are utilizing the field of biotechnology to create the transgenic animals. तो इस तरीके से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही हैं। शीप और गोट और दूसरे जो एनिमल्स हम लोग जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स यूज़ करते हैं उनके पास, वो सारा इम्पैक्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ही। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करके वी मे सर्व इट फॉर दी बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट, जस्ट गो थ्रू द कंटेंट। और भी इसके अलावा एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के बहुत और ज़्यादा और एग्जांपल्स हैं जिसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी डिस्कस करूँगी। टिल दैट आप लोग इतने ही पार्ट को अच्छे से पढ़ो और एक मरतबा अच्छे से इस वीडियो को देखो, रिवाइज़ करो, को रिलेटेड विथ योर PDF, जो आपके मोबाइल में आपका PDF है टेक्स्ट बुक का, उससे आप लोग इसको को रिलेट करो और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। स्टिल इफ़ यू विल बी हैविंग एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड दोज वी हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट जो मैंने दिया था, अब भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के असाइनमेंट वापस नहीं आए। सो प्लीज़ सबमिट दैट असाइनमेंट, अभी भी आप सबमिट कर सकते हो बिकॉज इट कंटेन मार्क्स। तो अपने असाइनमेंट सबमिट करो, अभी भी सबमिट करेंगे तो चलेगा, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ।
एंड आप लोग इसको अच्छे से रीड करो और उसके बाद आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझसे डिस्कस करो. सो टिल दैट टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.